Hello students, this is our fifth lecture of kinematics 1D. In previous lectures what we have done, we have discussed about displacement क्या होता है, distance क्या होता है, displacement vector होता है, distance is scalar, then we have done what, speed क्या होता है, velocity क्या होता है. But in that lectures what we have calculated speed or speed and velocity, what we have calculated, that was instantaneous using calculus method we have done. For that one basic formulas what we use, if you are recalling, one is what, आपका speed जो है that is what, ds by dt, rate of change of displacement upon or rate of change of displacement with respect to time. Acceleration क्या होता है, dv by dt, right, that is dv by dt. Rate of change of speed with respect to time is what, acceleration. In that one also rate of change of velocity with respect to time, right, that is acceleration. So this one what will get here is what, instantaneous. Next is what, this acceleration also written as what, this dv means v will differentiate with respect to x, a chain rule, dx extra हो गया, therefore what, will create a chain here, dx by dt. Now dx by dt is what, velocity, and dv by dx. Okay, now basic part is what, if you want to derive any equation or if you want to solve any problem, if velocity if you want to find out and s is known in terms of time t, will differentiate this s with respect to time t, ds by dt. ठीक है, अभी acceleration if you want to find out, velocity what is given is if with respect to time t, so you can differentiate it, what will get acceleration. But somewhere if acceleration if you want to find out and velocity what is given is not in terms of time t, that may be in terms of x, then we will use this relation is v into dv by dx. So this velocity will differentiate with respect to what, x, and what will get here, acceleration. This one what we have done in previous lecture. Now in today's lecture, first we will derive equations of motion, three equations of motion. Where you are familiar with this relation है ना, सबको पता रहेगा equation. First equation बोलो क्या रहेगा वो, simple equation, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2as. ये अपना three equation. These equations now will derive using calculus method. That means derivation. Okay, what we'll do here, derivations of equations of motion by or using calculus method, using calculus method. That three equations of motion, step by step we'll derive. It's very simple, not difficult. Okay, now you know acceleration is what, dv by dt. So if we'll use this equation, that is a is what, dv by dt. अब ये क्या होता है, ये this one is dt is a small time interval, that means dt tends to 0 you can say, and in this small time interval dv represents what, change in speed, right, change in speed. So in short time interval, when there is small time in small time interval, there is a small change in velocity, that dv by dt is what, instantaneous acceleration. ठीक है, अभी क्या करते हैं, I will take this term dt on left side equal to what, dv, that means a dt equal to what, dv. अब इसको integral you have studied, right, or basic information of integration and derivative you know, we will integrate this relation. Integral of a dt equal to integral of what, dv. Now these equations what you are deriving, that is for uniformly accelerated motion, that means आपका acceleration जो है, this one is what, constant here.
When acceleration remains constant, motion is called as uniformly accelerated motion. For uniformly accelerated motion, we'll derive this relation. अब ये आपका constant है, that means a will take outside, तो ये आपका integral of dt equal to integral dv. Now in integration, we'll use some limits of integration. Now assuming say motion starts from origin, ऐसा आपका x y axis रहता है ना, तो origin से suppose start होगा. And when t equal to 0, when motion starts, time is what? 0. तो उसका initial velocity जो रहेगा, that is represented by what? U. That means you can say at t equal to 0, s is 0 and velocity जो है is what? U. S 0 means starts from origin. When t is 0, velocity is what? U. Where that s is not required now, but it is required in next equation. Now when time जो है that becomes what? T second, your position means s is s and velocity जो है will write by capital V. T equal to 0, initial velocity is represented by what? U. At any time instant t, 5 seconds, 6 seconds, 10 seconds, anywhere, what is the velocity will represent by V? तो इधर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं. When t is 0, velocity is u, lower limit from where it starts. When time is t second, velocity is what? V. Now if we'll integrate it, तो इधर क्या हो जाएगा देखो. Integral of dt is what? A into integral of dt is what? T, varies from 0 to t, equal to integral of dv is what? V, varies from initial velocity u, final velocity v, upper limit, lower limit. All you are getting? Now here if we'll put upper limit, so it becomes what? T, lower limit is what? 0, equal to v minus u. That means u इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, u plus at हो गया. That means v equal to what? u plus at. आ गया फर्स्ट इक्वेशन, एकदम सिंपल, राइट. इंपॉर्टेंट क्या है? व्हेन t is 0, velocity is what? Initial velocity is represented by u. When t is t seconds, velocity is represented by what? Capital V. तो लेटर ऑन आप कभी भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v. क्लियर? ओके. नाउ विल डिराइव वन मोर रिलेशन, एकदम सिंपल. जैसा a is dv by dt, you know velocity जो है v is what? ds by dt. Rate of change of displacement with respect to time is what? Velocity. What it represent? In small time interval dt, change in position means displacement is what? Small displacement ds in small time interval dt. Okay. Now I'll take dt term on the left side, so v into dt equal to ds. अभी v जो है, this one just now derived, v is what? U plus at. So we'll substitute here. What is v? U plus at into ये dt आ गया is what? ds. इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, u dt plus at dt equal to ds. That means I can write it like this: u dt plus at dt equal to what? ds. Now we'll integrate this one. Again आपका लिमिट्स पता है. When t is 0, s is 0. When time is t, s becomes what? S is any, you can say s, position. Now if we'll integrate this equation, integral of u dt plus integral of at dt is what? Integral ds. इधर dt है dt, that means limit of time 0 to t. Here again dt means what? It varies from 0 to t and this varies from 0 to, yes, first class, no problem, correct. U is initial velocity, constant, integral of dt is what? T. That means it becomes what? U integral of dt is t, varies from 0 to t, plus acceleration a constant है,
इंटीग्रल ऑफ टी डी टी क्या होता है बोलो, टी स्क्वेयर बाय 2, दैट मीन्स प्लस क्या आ गया ए इंटीग्रल ऑफ टी डी टी इज व्हाट, टी स्क्वेयर बाय 2, ए 2 थोड़ा बड़ा निकल, हाँ, वेरीज फ्रॉम 0 to t, and this one is what, integral of ds is yes, varies from 0 to yes. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो सब 0 0 है, दैट मीन्स u इंटू, राइट हियर, u इंटू अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, परफेक्ट. कुछ डाउट? एकदम सिंपल. ये आ जाएगा टी स्क्वेयर बाय 2 मीन्स आई टेक हाफ कॉमन, प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लोअर लिमिट इज व्हाट, 0, correct. Here what will get, yes minus 0, clear. That means it becomes what now, अभी सिंपल है ना, ये तो 0 0 0 है. देखो u इंटू टी आ गया प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आ गया, एंड दिस इज व्हाट, यस, ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. फर्स्ट क्लास इक्वेशन है ना, सिंपल, यू टी प्लस हाफ at square. So this one you can say is what, equation number 2. फर्स्ट आ गया आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना. ओके, वन मोर इक्वेशन वी हैव टू डिराइव. थर्ड इक्वेशन इज व्हाट, v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. फॉर दिस इक्वेशन, फॉर डिराइविंग दिस इक्वेशन, a will write as what, v dv by ds. therefore ये ds से इधर मल्टीप्लाई करते तो what will get here from this one, a into ds equal to what, a ds, v dv will remain as it is, v dv, correct. एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट रहता है, that means here you can integrate this ds and either v and dv means terms of v है, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ, ये कॉमन ले सकते हैं ना, ये इसको कॉमन ले लिया बिकॉज कांस्टेंट है, ds इज व्हाट, इंटीग्रल v dv. अगेन लिमिट्स, व्हेन t इज 0, s 0 and velocity is what, u, s is what, 0 and velocity is initial velocity, u. At any time t instant, s is s and velocity is v, that means when this s becomes s, velocity is what, v. lower limit, upper limit, initial velocity u, final velocity v. okay, I think up to this step there is no problem, है ना, समझ में आ रहा है सब, है ना. अब ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ ds becomes what, yes, a into इंटीग्रल ऑफ ds is s, varies from 0 to s, equal to इंटीग्रल ऑफ वी डी वी क्या होता है, सबको पता है, वी स्क्वेयर बाय 2, वेरीज फ्रॉम व्हाट, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट इज व्हाट, v. अभी इधर अपर लिमिट लोअर लिमिट विल सब्स्टिट्यूट, a, दिस इज व्हाट, s माइनस 0 इक्वल टू अपर लिमिट v, तो आई टेक हाफ कॉमन, ये हो जाएगा v स्क्वेयर एंड अपर लिमिट मीन्स u स्क्वेयर. ये 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वेयर प्लस u स्क्वेयर, मीन्स v स्क्वेयर इज व्हाट, v स्क्वेयर इक्वल टू व्हाट, u स्क्वेयर प्लस 2as. परफेक्ट. अभी आगा आपका ये थर्ड इक्वेशन. इस फर्स्ट इक्वेशन व्हाट यू डेरिवेड इज व्हाट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. उसके लिए क्या यूज किया है, a इज dv by dt, देन टेकन टर्म dt ऑन लेफ्ट साइड, a dt इज व्हाट, dv. विल टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, तो इंटीग्रल a dt इज व्हाट, इंटीग्रल dv. तो व्हेन t इज 0, वेलोसिटी इज u, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन t इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, u, एंड व्हेन टाइम इज एनी टाइम इंस्टेंट, वेलोसिटी इज व्हाट, v. तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गए, इंटीग्रल ऑफ डी टी टी हो गए, इंटीग्रल ऑफ डी इज व्हाट, v, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर, सब्स्टिट्यूट किया, ए टी माइनस 0 एंड v माइनस यू मीन्स v इक्वल टू यू प्लस ए टी. एकदम सिंपल, राइट, क्लियर. टू डिराइव नेक्स्ट इक्वेशन, we'll use v is what, rate of change of displacement with respect to time, dt small time interval, ds is small displacement,
इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पड़ा कर गया ना, वी डी टी, इधर डी एस आ गए, वी आपने ऑलरेडी निकाला है u प्लस ए टी, इधर डाल दिया डी टी डी एस, फिर इसको सेपरेट कर दिया, इधर टू टर्म्स है ना, तो यू डी टी आ गए प्लस ए टी डी टी हो गए, इज व्हाट डी एस। इसको इंटीग्रेट किया, व्हेन टी इज 0 राइट, s इज व्हाट 0, व्हेन t इज t सेकंड, s इज व्हाट s। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u dt का इंटीग्रल t आ गया, a कांस्टेंट है, एंड t का इंटीग्रल t dt का होगा t स्क्वायर बाय 2, एंड ds का इंटीग्रल s। अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, व्हाट विल गेट s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। नेक्स्ट जो है a in terms of yes, right, in terms of yes, that is may be written as dx, may be written as ds, तो v dv by ds or v dv by dx, तो multiplying here by ds, a ds is what v dv, a constant है because what you are doing is for uniformly accelerated motion, a constant है तो ds का इंटीग्रल ले लिया, v dv का इंटीग्रल ले लिया, when s is 0 initial velocity u, when s is s velocity is what v, तो a इंटीग्रल ऑफ ds आ गया s, वेरीज फ्रॉम 0 टू s, एंड v स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रल ऑफ v dv क्या होता है v स्क्वायर बाय 2, 0 u टू v, 0 नहीं u, इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी, इधर सब्स्टिट्यूट किया, अपर लिमिट आ गया s, लोअर लिमिट 0, इधर अपर लिमिट v स्क्वायर हो गया, लोअर लिमिट आ गया आपका u स्क्वायर, हाफ कॉमन, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2as, इधर तो 0 है 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, दैट मीन्स v स्क्वायर इज व्हाट, वो u स्क्वायर लेफ्ट साइड में इधर चेंज हो गया तो पॉजिटिव हो गया u स्क्वायर प्लस 2s। तो दीज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी क्या करते हैं ना, ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, दिस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आई विल राइट हियर ऑन राइट हैंड साइड, एंड विल सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन यूजिंग दिस इक्वेशन, राइट। अभी 3 इक्वेशन जो डिराइव किया है सबको पता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। थर्ड इक्वेशन इज व्हाट, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अभी देखो, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, नंबर 1, s इज व्हाट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशंस रेडी हो गए। बेसिकली कहाँ से आ गए, v इज ds by dt, a इज dv by dt, and a is also written as v dv by ds। Now we'll solve problems। सिंपल प्रॉब्लम, डिफिकल्ट नहीं है। Only properly you have to substitute values and meaning of each term you must know, right? जैसा u means what initial velocity है, v is what final velocity, t means time, a is what acceleration, बाकी तो है नहीं इसमें कुछ, right? कितना टर्म है, u, v, a, t and s, right? 5 terms। अभी in this problem what is given, see here, I will go through the wording of problem। क्या क्या दिया है देखो, a car moving along a straight line, car is moving along straight line, okay। इस सपोज रोड है एंड कार इज मूविंग अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ बताए, राइट, अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे और स्ट्रेट लाइन विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स इधर सपोज कार है तो इट्स स्पीड दिया है, स्पीड, ये इनिशियल स्पीड हो जाएगा ना, एंड दिस वन इज हाउ मच, इट इज 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्मल मेथड क्या है, किलोमीटर का मीटर करेंगे तो 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पर आवर है तो आवर डिनोमीटर में गया, 1 आवर मीन्स व्हाट 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकंड, तो डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 हो जाएगा। तो दिस विल बी व्हाट 72 इंटू ये आपका 5/18 आता है, 1000 डिवाइडेड बाय 3600 इज नथिंग बट व्हाट 5/18। तो ये क्या हो जाएगा, 18 4s are 72, 4 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज इनिशियल स्पीड। कैन आई राइट हियर, आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ओके।
car moving along a straight highway with a speed of 72 km per hour is brought to stop within a distance of 100 meter. Is brought to stop मीन्स क्या किया, 72 किलोमीटर पर आवर मीन्स तगड़ा स्पीड होगा, है ना. 72 इज नॉट यू कैन से स्लो, ऑन हाईवे से 72. अभी ब्रॉट टू रेस्ट, तो ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाया. ब्रेक लगाया तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो है 72 से 60 आएगा, 50 आएगा, 40 करते करते 0 हो जाएगा. और इसके लिए कुछ तो एक डिस्टेंस कवर हो जाएगा, है ना, एक टाइम भी लगेगा. नाउ इट कम्स टू रेस्ट, कार ब्रॉट टू रेस्ट विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. देखो दैट मीन्स पहले तो इसका वेलोसिटी ये 0 हो गया, एंड ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा आपका 100 मीटर. इज ब्रॉट टू रेस्ट और कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग व्हाट 100 मीटर. ऐसे दिया ना. कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे with a speed of 72 km per hour is brought to stop within a distance of 100 meter. यानी पहले कार चल रहा था 72 किलोमीटर पर आवर मीन्स 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है. इट ब्रॉट टू रेस्ट, यानी ब्रेक लगाया, स्पीड कम हो गए धीरे धीरे और रेस्ट पे आ गए. विद इन व्हाट डिस्टेंस, 100 मीटर दूरी पे जाके गाड़ी खड़ा हो गया. ऐसा थोड़ी होता है कि आप अगर 100-120 स्पीड से जा रहे, आपने देखा सामने कुछ तो बाइक वाला या आ गए, आप कार में पूरा ब्रेक भी मारेंगे तो गाड़ी उधर ही खड़ा नहीं होता है. इट मूव्स स्लाइटली ऑन ड्यू टू व्हाट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी. तो इट मूव्स 100 मीटर. निकलना क्या है भाई, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार. रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. फाइंड व्हाट, फाइंड रिटार्डेशन मीन्स आपको क्या निकालना है, -a का वैल्यू निकालना है. हाँ, वो निगेटिव आएगा. बट सपोज ये आ गया आंसर a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका रिटार्डेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज निगेटिव रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिटार्डेशन. एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप, आफ्टर व्हाट टाइम इट कम्स टू रेस्ट, यानी कितने टाइम के बाद गाड़ी रेस्ट पे आ जाएगा, कार रेस्ट पे आएगा. अबे देखो, अबे सिंपल पार्ट हो गया. क्या क्या पता है, देखो u पता है, v पता है, s पता है. u पता है, v पता है, तो इधर s का टर्म नहीं है तो इधर से नहीं आएगा. u पता है, v पता, हाँ s भी पता है तो एक्सीलरेशन मिल सकता है. दैट मीन्स विल यूज व्हाट, इक्वेशन नंबर 3, v square equal to u square plus 2as. परफेक्ट. v पता है, u पता है, s पता है तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा. v क्या है भाई, 0. u देखो फटाफट 20 है तो ये 20 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू a इंटू s कितना है 100. दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये तो आपका 20 स्क्वायर 400 हो गया, प्लस ये 200 a आ गया. ए कितना हो गया, तो ये 400 आपका गया, माइनस हो गया, अदर साइड में गया तो डिवाइडेड बाय व्हाट 200, ये आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर. बट ये एक्सीलरेशन देखो आ गया माइनस साइन से. व्हाट विल राइट एज आंसर, रिटार्डेशन. रिटार्डेशन क्या रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, रिटार्डेशन पूछा, एक्सीलरेशन पूछते रहे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी कितने टाइम के बाद गाड़ी रेस्ट पे आएगा, t निकालना है. अभी आपके पास में एक और आ गया, a भी आ गया ना. u पता है, v पता है, s पता है, a पता है, टाइम निकाल सकते, आराम से निकाल सकते. इक्वेशन नंबर 1 देखो, v पता है, u पता है, a भी पता है, t मिल जाएगा. मीन्स अभी थोड़ा इधर लिखता हूँ. इक्वेशन नंबर 1 ये क्या है जी, v इक्वल टू u प्लस ए टी. v क्या है 0, u क्या है बोलो 20, प्लस ये तो माइनस आ गया इधर t, दैट मीन्स -20 इक्वल टू -2t, माइनस माइनस गया है ना. 20 इक्वल टू व्हाट 2t, तो t क्या आ गया 10 सेकेंड. देखो सिंपल प्रॉब्लम. हाँ, बट ऐसा ना प्रॉब्लम्स आ जाता है एग्जाम में. हाँ,
तो ये आपका आंसर। इसके लिए क्या करते हैं ना एमसीक्यू में, अजीब अजीब आंसर दिया रहेगा। एक आपका रिटार्डेशन 2 एंड ये 10, ये करेक्ट आंसर। एक इधर तो 5 दे दिया है, इधर 20 दे दिया, ये इधर 1 दे दिया है, इधर समथिंग यू कैन से 15 दे दिया। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द करेक्ट ऑप्शन। बट बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन इफ यू नो देन इजीली यू कैन से सोल्यूशन इज पॉसिबल। क्लियर? अभी आ गया। दैट मीन्स इधर से क्या होगा कि व्हेन विल अप्लाई ब्रेक्स तो स्पीड रिड्यूस है। एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बूम, स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा फर्स्ट गियर में गाड़ी डालते हैं, एक्सीलेटर प्रेस किया तो कि स्पीड बढ़ता है, मीन्स एक्सीलरेशन पॉजिटिव। फुल स्पीड से जा रहा है, ब्रेक लगाया, स्पीड डिक्रीजेस, एक्सीलरेशन निगेटिव, मीन्स व्हाट, रिटार्डेशन। सबको समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट क्लास। अभी और एक प्रॉब्लम करते हैं। विल सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रीवियस जेडब्ल्यू एग्जाम ऑल्सो। पहले ना वो जो एग्जाम था ना जेडब्ल्यू, उसको AIEEE बोलते थे, AIEEE। तो AIEEE भी रहेगा, मीन्स व्हाट, प्रीवियस जेडब्ल्यू एग्जाम। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो बल क्या कह दिया है। कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार ना 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ओके। कैन बी स्टॉप बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। दैट मीन्स अभी इसमें जो क्या ना 100 मीटर में स्टॉप होता है, ऐसा इधर कितने डिस्टेंस में होता है, कैन बी स्टॉप बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। स्पीड क्या दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ये देखो इधर, ये सपोज एक कार, ठीक है, इधर कार, इसका इधर U 50 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप, मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इन व्हाट डिस्टेंस, ये दिया है, इन व्हाट डिस्टेंस, तो ये दिया है 6 मीटर, करेक्ट। इसमें जो U है, दिस वन इज व्हाट, 50 किलोमीटर पर आवर है। यू नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। क्या रहता है, 5 डिवाइडेड बाय 18। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 बाय 18। कुछ कटकुट होता है क्या इधर, हाँ 2 से जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर 25, मीन्स ये 9, ये 25 इंटू 5 कितना हो गया रे, 125 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो आ गया, दिस वन आई विल राइट हियर, 125 बाय 9 मीटर पर सेकंड। अ कार इज मूविंग विथ a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। दिस इज वन केस। और एक केस दिया, what will be the minimum stopping distance if the same car is moving at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर एक कार 100 किलोमीटर पर आवर से अगर जाएगा, राइट, मीन्स ये आपका इनिशियल, इधर इसका U है ना, इधर 50 था, अभी 100 हो गए, तो दिस कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट। यानी कब ये रुक जाएगा, V बिकम 0 आफ्टर व्हाट डिस्टेंस, ये निकालना है। यस, ये पूछा है ना। और देखो एक कार है, पहले 50 से जा रहा है, फिर 100 से जा रहा है, तो जो व्हील्स है एंड रोड है, इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन रहता है ना, एंड विंड रेजिस्टेंस वगैरह जो भी रहेगा, तो इधर से ना आपको एक रिटार्डेशन मिल सकता है, जो कि कार सेम है, उसका शेप वगैरह सेम है, टायर सेम है, रोड सेम है, तो आपका जो डिसिलरेशन इधर आएगा ना, सेम डिसिलरेशन और रिटार्डेशन इधर भी आएगा। अभी इधर ना डिस्टेंस दिया है, तो इधर से रिटार्डेशन या डिसिलरेशन निकाल सकते हैं। सेम रिटार्डेशन विल यूज, उधर से S मिल सकता है। आपको एक ही इक्वेशन लगाना है। देखो इधर से रिटार्डेशन मिल सकता है, लास्ट प्रॉब्लम में जो क्या सेम U पता है, V पता है, S पता है, ये निकाल सकते हैं। यस, ये आई विल राइट हियर, ये आपका केस 1, हाँ, ये है आपका केस 2। अब देखो फॉर केस 1 U V S, ये पता है। आई विल यूज थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन में क्या है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V तो 0 है, U क्या है 125 बाय 9, 125 बाय 9 इसका स्क्वायर प्लस 2A, एस कितना है भाई 6 मीटर है, नहीं 6 इंटू 2 ये कितना हो गया, ये 12 हो गया ना।
अभी इसको धीरे से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस 125/9 आएगा इसका स्क्वायर इक्वल टू ए 6 इंटू 2 मीन्स इसको ना 12 लिखते हैं ना, यस 12a। तो इधर से a क्या हो जाएगा, ये 12 डिनोमिनेटर में आएगा इधर, है ना। दैट मीन्स ये माइनस 125/9 स्क्वायर, तो 125 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9, ओके। और ये 12 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको इधर लिख दिया, ओके, यस। दिस मच मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ना ये रिटार्डेशन केस 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, केस 2। इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट करने का देखो, अभी इधर का आपका u जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले तो इसको u इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर जो है ना, इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। वैसा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब 50 था तो ये 125/9 हो गया, इसको 100 कर दिया तो डबल हो जाएगा ना, और 100 इंटू 5/18 वापस 2 से जाएगा ना, तो ये 9 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना हो गया 250 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड, करेक्ट, यस। अभी आपको u पता है, ये दिस वन आई विल राइट हियर 250/9 मीटर पर सेकंड, इसका भी वेलोसिटी 0 है, यस निकालना है आपको। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन पता है, दैट मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर प्लस 2as। v तो 0 है, u है आपका 250/9 है ना, ये केस के लिए u कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, वो आ गया 250/9 प्लस ये 2, a का वैल्यू है -125 इंटू -125 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 इंटू 12 इंटू व्हाट, यस, करेक्ट। देखो इसको ना लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ओके। अरे देखो हाँ, ये माइनस और इसको ना 250 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर है ना, तो आई विल राइट 250 इंटू 250 एंड 9 इंटू 9, तो कटकुट करने में इजी हो जाएगा। देखो माइनस 250 इंटू 250 अपॉन 9 इंटू 9 इक्वल टू, अभी आपका ये जो टर्म ये माइनस है इधर है ना, तो आई विल राइट हियर -2 इंटू, ये भी माइनस है, तो ये माइनस का ये माइनस आ गया 2 इंटू, ये क्या हो गया 125 इंटू 125 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 12, यस। अभी आपका ना माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, देखो आई विल कट दिस टर्म, माइनस माइनस गया तो आपका यस पॉजिटिव आ गया, नंबर 1। इधर का 9 इधर का 9 गया, ये 9 कट गया, है ना। अभी ये जो है 125 तो इधर 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो इधर 2 हो गए। अभी देखो क्या होगा 2 ये भी कट सकता है ना, एक 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो इधर 2 आ गए, ये कितना आ गया आपका, इधर है 12 है ना, 12 एंड 2, तो यस कितना आ जाएगा, यस इज व्हाट 2 इंटू 12 कितना होगा जी 24 मीटर। दैट मीन्स फर्स्ट केस में कार क्या स्पीड से जा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो कैन बी स्टॉप, तो कितने डिस्टेंस में रुक गए वो 6 मीटर में। जब स्पीड इसका डबल किया ना, डबल 50 से कितना गया 100 किलोमीटर पर आवर, और 6 का 12 मीटर नहीं हो गया 4 टाइम्स हो गए। तो ये थोड़ा ऐसा ध्यान में भी रख सकते हैं कि सेम कार है मूविंग विथ सम स्पीड, उसका अगर इनिशियल स्पीड डबल कर दिया तो जो स्टॉपिंग का डिस्टेंस है, डिस्टेंस आफ्टर विच कार स्टॉप्स, वो 4 टाइम्स होता है। पहले इसमें 6, इसमें 24। अभी एनी एट रैंडम प्रॉब्लम इज गिवन कि कार इज मूविंग विथ सम स्पीड ऑफ व्हाट 100 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इफ स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज, कितना बढ़ा दिया 100 का 200 कर दिया, पहले इसमें 10 मीटर पे रुकता था, अभी कितने डिस्टेंस पे रुकेगा, डायरेक्ट आंसर लिखने का 40 मीटर, 4 टाइम्स से आएगा। ओके क्लियर, ऐसा और 1-2 प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस वन इज क्लियर है ना, यस। देखो दैट मीन्स सिंपल और इक्वेशंस ऑफ मोशन विल यूज,
that is v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2s. Not difficult, very easy to recollect है ना. उसका डेरिवेशन भी हो गया, उस पर अपना 2 प्रॉब्लम भी आ गया अपना, है ना. और एक प्रॉब्लम करते पहले, दैट मीन विल सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. और फिलहाल अभी जो प्रॉब्लम किया था ना, राइट, दैट वाज फ्रॉम AIEEE 03 एग्जाम 2003 AIEEE. ओके, तो दैट वाज फ्रॉम एग्जाम. अभी जो प्रॉब्लम है ना, दिस इज फ्रॉम अगेन एड, दैट मीन्स प्रीवियस JEE एग्जाम. ये 2004 का प्रॉब्लम है. दिस फ्रॉम 2004. लास्ट जो प्रॉब्लम किया 2003 का था. और सिंपल है. एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर. ऑटोमोबाइल क्या होता है? ऑटोमोबाइल मीन्स एनी व्हीकल, राइट, व्हीकल विच वन मूव्स ऑन रोड हैविंग सम इंजन वगैरह ना. ऑटोमोबाइल सेक्टर रहता है एक बड़ा, इधर सब गाड़ियाँ बनती है. ऑटोमोबाइल मीन्स एनी व्हीकल, ठीक है, एनी व्हीकल. नहीं तो ऑटोमोबाइल देगा डर गए, ऐसा कुछ नहीं है. ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विथ सम स्पीड, यानी ऑटोमोबाइल में एनी व्हीकल, राइट, ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. ये देखो लास्ट टाइम जैसे हो गया. जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, अभी फटाफट करंट लग गया आपको, अभी फटाफट आ जाएगा. देखो केस 1, ओके, इधर एक ऑटोमोबाइल डाल दिया, ओके, इसका U कैन बी स्टॉप, इसका V0 विद इन वॉट डिस्टेंस 20 मीटर में रुक गया. केस 1 का U कितना है भाई? ये कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है. चलो 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मीटर पर सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/18. हाँ, तो और 2 से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो गया, ये आपका 30 हो जाएगा ना. हाँ, 13 into 5 कितना होता है? 150 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड. चलो इधर लिख दिया, 150 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड. ये तो हो गया, सिंपल काम है ना. एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स. इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, मीन्स 120 किलोमीटर पर आवर से अगर जाएगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी व्हाट. उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है. 20 मीटर है, 40 मीटर है, 60 मीटर है, 80 मीटर है. इसमें से एक चूज करना है. ऐसा आपको तो करंट लग गया रहेगा. इधर 20 है, इधर 60 था, अभी 120 हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 into 4, 80 आना चाहिए. सॉल्व करते इसको. हाँ, विल सॉल्व, ठीक है. फिर आपको भी टाइप पता चल गया है ना. ये देखो कार वापस इधर आ गया, ऑटोमोबाइल, कार नहीं अभी ऑटोमोबाइल. हाँ, तो U अभी ये कितने डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा वो डोंट नो. इसका बट वेलोसिटी तो पता है ना, कैन बी स्टॉप मीन्स व्हाट? V0. इसका U निकाल लेते हैं. वो U कितना था? डबल हो गया ना, किलोमीटर पर आवर. तो भाई क्या हो जाएगा? ये 120 into 5/18. चलो ये 9, ये 60 into 5 कितना हो गया? उसका डबल हो गया ना, तो उधर 150 था, तो अभी 300 आ गया. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. दिस वन आई विल राइट हियर. कितना हो गया भाई? ये 300 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड. ओके, फर्स्ट केस से क्या करते हैं? एक्सीलरेशन मीन्स रिटार्डेशन निकालते. वो ये केस 2 में डाल देंगे. देखो केस 1, ओके, सेम इक्वेशन. हाँ, V स्क्वायर मीन्स और थर्ड इक्वेशन, U स्क्वायर प्लस 2AS. V तो 0 है. ऑटोमोबाइल कम्स टू रेस्ट, यानी ब्रेक मारने के बाद में ऑटोमोबाइल सो एंड सो डिस्टेंस के बाद 20 मीटर के बाद रेस्ट पे आना है. V0. U क्या है भाई? 150/9 का स्क्वायर प्लस 2A. S कितना है? 20. दैट मीन्स इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस 150 इंटू 150 कर दिया इसको, डिवाइडेड बाय व्हाट? 9 into 9 इक्वल टू ये 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा? ये आ गया 40A. मीन्स आपका एक्सीलरेशन आ गया माइनस 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 इंटू, हाँ ये इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आ गया तो क्या डिनोमीटर में आ गया. चलो ये इसको रख दिया इधर.
ये आ गया आपका रिटार्डेशन, माइनस साइन आ गया, माइनस मीन्स व्हाट, रिटार्डेशन, ब्रेक अप्लाई किया, कार ऑटोमोबाइल कम्स टू स्टॉप। अभी केस 2 जो है सेम इक्वेशन विल यूज, ऑटोमोबाइल सेम है, रोड सेम है, ऑटोमोबाइल का टायर सेम है, व्हील सेम है, तो आपका रिटार्डेशन विल बी सेम। अगेन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v तो सेम है, गाड़ी जाके रुक रहा है, ऑटोमोबाइल है ना, कम्स टू रेस्ट, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस इज कम टू रेस्ट, वेलोसिटी इज व्हाट 0, u कितना है 300/9, चलो 300/9, इसका क्या आ गया स्क्वायर प्लस 2 इंटू as, ये तो पता है ना, -150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 इंटू 40 इंटू s। अभी ना पहले ये टर्म को ना लेफ्ट साइड में लेके आता है, ये ऑलरेडी इधर माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, 300/9 स्क्वायर है, ब्रैकेट स्क्वायर है, तो माइनस 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9, फर्स्ट क्लास है ना, एकदम सिंपल। ये माइनस साइन 2 इंटू माइनस है ना, तो राइट हियर माइनस, ये 2 इंटू 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 इंटू 40 इंटू s। अभी देखो क्या क्या करता है भाई, इधर का 9 गया, ये 9 गया है ना, ये 9 गया, ये भी 9 गया, हाँ ये 150 है, इधर 300, इधर 2 हो जाएगा, ये 150 है, ये तो इधर का 2 गया, ये 2 और ये 2 गया, इधर 2 है, इधर 40 है, ये माइनस माइनस भी गया, तो इधर 2 इधर 40, कितना हो गया 80। अपना तो आंसर पहले आया था एक्चुअली है ना, बट स्टिल वी हैव सॉल्व्ड राइट, एयर ट्रिपल का प्रॉब्लम है, तो दिस विल बी व्हाट 40 इंटू ये 2 बज गया, 40 इंटू 2 कितना हो गया भाई 80 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। अभी depending on these you can see equations of motion, this uniformly oscillated motion will solve some more number of problems, okay, where just basic equations you must know, थोड़ा calculation पे concentrate करना है, which equation will apply out of 3, that is also important। जो डेटा दिया रहेगा ना, अभी ये प्रॉब्लम्स में इधर टाइम नहीं आया था, इसके लिए ये दोनों प्रॉब्लम में टाइम का इक्वेशन वी आर नॉट यूज है ना, आपके थर्ड इक्वेशन से काम फर्स्ट क्लास हो गया राइट। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, a bullet fired into a fixed target, गन है, बुलेट इज फायर्ड, क्या राइट, उधर टारगेट है। अभी टारगेट पता नहीं है कि बाबा टारगेट कोई बर्ड है, नहीं बर्ड को नहीं मारने का, टारगेट में भी यू कैन से कुछ तो वॉल रहेगा या ऐसा ब्लॉक है सपोज है ना, दैट इज अ टारगेट, ठीक है। बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट, loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter, loses half of its velocity, that means suppose 10 मीटर पर सेकंड से अगर बुलेट फायर किया, इधर सपोज एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा, कितना 3 सेंटीमीटर अंदर जाके उसका वेलोसिटी ना हाफ हो जाएगा, यानी इधर 10 मीटर पर सेकंड से अगर इफ इट स्टार्ट्स इट्स मोशन राइट, तो व्हेन इट मूव्स इन द टारगेट बाय 3 सेंटीमीटर वेलोसिटी हाफ हो जाएगा, ऐसा कुछ डेटा दिया है। इसको ना थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम, सिंपल चित्रंग बनाने का, उसका तो एकदम सिंपल होता है। देखो क्या करते हैं, ये सपोज एक आपका ऐसा एक ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक, ये दिस इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ओके। अब बुलेट इज फायर्ड, देखो अभी बुलेट कैसा है, ये ऐसा थोड़ा बनाता हूँ इसका, ये बुलेट है सब राइट, ये बुलेट इज फायर्ड विथ सम वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी तो दिया नहीं है, बट हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी राइट इधर आ जाएगा आफ्टर पेनिट्रेटिंग, इसका ना वेलोसिटी आई विल अज्यूम व्हाट, ये सपोज u है, तो बुलेट गया, इधर स्ट्राइक हो गया, ये जाने के बाद में इधर क्या हो गया ना, इट मूव्स हाउ मच डिस्टेंस, ये ना 3 सेंटीमीटर से गया, तो जब बुलेट ऐसा 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 करके जब इधर आ जाएगा ना 3 सेंटीमीटर व्हेन इट पेनिट्रेट्स, ये इधर आ गया बुलेट,
ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, नहीं, हाँ अज्यूम, हाँ ये दोनों का डायमीटर सेम है। तो इधर जो वेलोसिटी है ना भाई, ये हो जाएगा हाफ u/2, यानी ये सपोज आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो इधर जो आपका वेलोसिटी आ जाए कितना हो गया u/2। देखो आई विल रीड अगेन व्हाट इज गिवन। बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। परफेक्ट आ गया ना, आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम। ये वेलोसिटी कम क्यों हो रहा है, ये भी सोचना पड़ेगा ना। अच्छा सपोज एक ब्लॉक है, जब बुलेट व्हेन इट स्ट्राइक्स, तो जब ऐसा अंदर जाएगा ना वेलोसिटी की वजह से जाएगा ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, तो जो सरफेस है ना उसका आउटर सरफेस सिलेंडर का, राइट, सिलेंड्रिकल रहता है, ऐसा सर्कुलर बॉडी है ना सिलेंडर का, तो ये जब जाएगा ना तो जो आउटर सरफेस है उसका, उसके ऊपर ना रेजिस्टेंस आएगा, मीन्स रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट्स ऑन अ बुलेट ड्यू टू दैट वन। हाँ हवा में अगर मारेंगे तो विंड का रेजिस्टेंस आएगा, तो उससे एकदम कम नहीं हो जाएगा, लेकिन किधर भी ऐसा बीच में वॉल आ गया ना, उसमें ठोक दिया बुलेट, राइट, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन अ बॉडी। तो इधर ना ये ब्लॉक का रेजिस्टेंस इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उसका वर्क डन ना निगेटिव होता है, वो नेक्स्ट वर्क फॉर एनर्जी में सीखेंगे। बट जब कोई बॉडी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट होता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस, क्योंकि वो जो रेजिस्टिव पावर है अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, उसका वर्क डन निगेटिव रहता है। हाउ मच, क्या व्हाट इज आस्क इन प्रॉब्लम, हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट, इसके बाद में भी कितना पेनिट्रेट हो जाएगा। अभी तो 3 सेंटीमीटर में वो आधा तो मर गया इधर, है ना, u का u/2 है। हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा मीन्स इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है आगे जाके, 0, बट व्हेन इट बिकम 0 उसका फर्दर पेनिट्रेशन कितना रहेगा। इसको ना अज्यूम करते हैं इधर नहीं कि बाबा ये सपोज लोकेशन C एंड इधर ना इसका जो वेलोसिटी है दिस विल बी व्हाट, इसका v बिकम्स व्हाट 0। देखो मीन्स आई विल राइट VC, ये जो B पे है तो यू कैन से VB इज u/2, और ये जो है ना ये निकालना है ना, हाउ मच फर्दर इट पेनिट्रेट्स, कितना और आगे घुस जाएगा, सो दैट वेलोसिटी बिकम 0। इसको कुछ तो लिखते हैं ना, SBC लिखता हूं मैं, ये आपका SAB हो गया। अभी देखो बुलेट व्हेन इट इज फायर्ड एंड पेनिट्रेट्स इन द बॉडी इन दिस टारगेट, इधर रेजिस्टिव फोर्स विच वन इज एक्टिंग एंड वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, मीन्स वो रिटार्डेशन ही आ रहा है। तो इसके A to B में जो रिटार्डेशन रहेगा ना, सेम रिटार्डेशन इज हियर, यानी आपका रिटार्डेशन जो है दैट वन एक्ट्स वेयर, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इधर A रहेगा तो A भी आपका A रहेगा, है ना, ये रिटार्डेशन हो गया। अभी क्या करते हैं, यू नो इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड इफ विल अज्यूम कि दिस वन लोकेशन ये जो है ये सपोज O to B मोशन कंसीडर करते हैं, O to B मोशन फ्रॉम O to B, तो ये जैसे जाएगा ना दिस वन, देयर इज नो रेजिस्टेंस यू कैन इन दिस पार्ट, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर ही, और ये जो है सेम बुलेट यू कैन अज्यूम हियर, राइट, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 3, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा u/2, दैट इज गिवन इन प्रॉब्लम, राइट। नाउ ये जो है A to B यू कैन से, A to B अगर मोशन कंसीडर करते हैं तो दिस वन आई विल टेक एज अ केस 1। इसमें भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी आई विल राइट u, फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी u/2, क्लियर। आपका S कितना है 3 सेंटीमीटर है। हाँ u का कुछ मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, वो अगर मीटर पर सेकंड में रहता है तो इसको मीटर्स में करना पड़ेगा, ये mm पर सेकंड रहेगा तो इसको mm में करना, उसमें दिया ही नहीं है, तो विल अज्यूम कि दैट इज आल्सो इन सेंटीमीटर पर सेकंड, सो दैट इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी u पता है, v पता है, कैन यू फाइंड आउट a रिटार्डेशन, सेम स्टोरी जो लास्ट 2 प्रॉब्लम में किया है ना, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, v कितना है फाइनल u/2 का स्क्वायर, ये तो u² ही रहेगा प्लस 2a, s कितना हो गया 3 सेंटीमीटर
ओके। हाँ, ये देखो, इसको करते यू स्क्वायर, ये कितना होगा 4, इधर यू स्क्वायर है, इधर लेके आएंगे तो माइनस यू स्क्वायर, 3 इंटू 2 क्या होगा 6a, करेक्ट। ये 1/4 है, ये 1 है, मीन्स 3/4 हो जाएगा ना, या 1 माइनस 4/4 माइनस 3/4 माइनस 3/4 यू स्क्वायर इज व्हाट 6a। 6 को भाई इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 6 इंटू, ये देखो a इज व्हाट माइनस, ये यू स्क्वायर तो ऐसे रहेगा 3/4, ये 6 इधर डिनोमिनेटर में आ गया ना, करेक्ट। ये 3 एंड ये 2, हाँ तो ये कितना आ गया यू स्क्वायर, हाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 आ गया। तो मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है, इट इज इन टर्म्स ऑफ यू, यू नहीं दिया है, ठीक है, आ जाएगा, फाइनल आंसर भी आ जाएगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ यू। ये आपका केस 1 हो गया। अभी केस 2 में क्या करते हैं ना, केस 2 आई विल टेक इट फ्रॉम, एक तो B to C भी ले सकते हैं या A to C भी ले सकते हैं। A to C लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा, B to C लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u/2 फाइनल बिकम 0, ठीक है। B to C लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सेकंड इसका SBC पूछा है ना B to C, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स व्हाट VB, दैट इज नथिंग बट u/2। हाँ, इधर वेलोसिटी कितना था u/2। इसका फाइनल वेलोसिटी फुल राइट, तो दैट वन विल राइट वेयर एट C, तो ये 0 हो जाएगा, बिफोर व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, एट द इंस्टेंट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। आपका जो A है दैट इज सेम हियर, माइनस यू स्क्वायर बाय 8 हो गया। आपको निकालना क्या है भाई, SBC निकालना है, क्या यूज करने का, हाँ सेम इक्वेशन इधर डालेंगे तो आपका भी A पता है, यस अननोन है तो यस मिल सकता है ना आराम से। अभी देखो, अभी क्या करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इज व्हाट 0, u इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा u/2 का स्क्वायर प्लस 2a निकाला है, हाँ ये देखो माइनस यू स्क्वायर बाय 8, एंड ये हो जाएगा SBC। B to C में क्या है आपका SBC। तो थोड़ा इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये लेफ्ट साइड में लेके चलो, फर्स्ट क्लास, यू स्क्वायर बाय 4 हो गया, इक्वल टू, ये माइनस ऑलरेडी है इधर, तो ये 2 यू स्क्वायर बाय 8 है, तो ये गया तो इधर 4 हो जाएगा ना, तो ये 4 कर देते हैं, ओके SBC, करेक्ट। अभी तो सिंपल हो गया, यू स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस क्या आ गया SBC, ये तो 1 आ गया आंसर है ना, दिस विल बी व्हाट 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, डिफिकल्ट नहीं है अपना इक्वेशन, उसमें तो मुझे लगता है वो थर्ड इक्वेशन ही ज़्यादा लग रहा है ना, तो थर्ड इक्वेशन पे ना नॉर्मली प्रॉब्लम्स ज़्यादा आता है, फर्स्ट 2 पे ना थोड़ा प्रॉब्लम कम आता है, बट आता है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है। ये भी प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है ना, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम AIEEE 2005 का प्रॉब्लम था, हाँ देखो 3, 4, 5 ऐसा कुछ 3 प्रॉब्लम हो गया अपना AIEEE का, सब प्रीवियस JEE मीन्स AIEEE एग्जाम का प्रॉब्लम्स हो गया है ना। दैट मीन्स डिफिकल्ट नहीं है, बट सब बेसिक पार्ट पे यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू मस्ट नो व्हाट आर द इक्वेशंस, राइट। 3 ही तो इक्वेशन है, आराम से ध्यान में रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1-2-3 बार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना आराम से होता है। अभी ना और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ट्रेन वगैरह का प्रॉब्लम है। व्हाट इज गिवन, अ मैन इज 9 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ अ ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सीलरेशन ऑफ a 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स ऐसा इमेजिन करो, हमारे मुंबई में होता है ऐसा, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े है, आप ब्रिज पे है, अभी ट्रेन खड़ा है तो आप क्या करेंगे, इधर दौड़ते दौड़ते इधर आ गए, राइट, और ट्रेन निकल गया। अभी ट्रेन का डोर, ये पर्सन जो है इधर से 9 मीटर पे है, और ट्रेन स्टार्ट्स विथ सम एक्सीलरेशन, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे स्टार्ट हो जाएगा ना इट एक्सीलरेट्स, उसका एक्सीलरेशन दिया है।
अभी भाई गाड़ी तो पकड़ना है, भागो दौड़ो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ना। अब इसका ना थोड़ा डायग्राम बनाते, फिगर बनाने का फर्स्ट क्लास। क्या दिया है, मैन इज 9 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ अ ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग विथ एक्सीलरेशन a 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स ऐसा इमेजिन करो, हाँ जस्ट इमेजिन लाइक दिस कि ये आपका प्लेटफॉर्म या रेलवे ट्रैक, राइट, ये है आपका ट्रेन, ठीक है। इधर कह देते डब्बा डब्बा डब्बा, हमारे इधर 9 बोगी 12 बोगी 9 डब्बा 12 डब्बा ऐसा गाड़ी रहता है, ये ट्रेन, ठीक है। अभी ये ट्रेन जो है ना, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है 0, इट स्टार्ट्स विथ एक्सीलरेशन a, यानी ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी, ट्रेन का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट स्टार्ट्स मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, उसका जो एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ मैन इज 9 मीटर बिहाइंड द डोर, इधर डोर है ट्रेन का, इसके पीछे है बेचारा, गाड़ी तो पकड़ना है, ऑफिस में जाना है उसको, है ना, कि चाहेला नरीमन पॉइंट पे किधर भाग रहा है पता नहीं, बट ये तो 9 मीटर है इसका डिस्टेंस, है ना, पता नहीं कॉलेज जा रहा है ऑफिस जा रहा है, आई डोंट नो, ठीक है 9 मीटर पे गाड़ी तो पकड़ना है। अभी क्या करेगा, दौड़ेगा। क्या इंफॉर्मेशन दिया है, द मैन रन्स एट फुल स्पीड, पूरा ताकत से है ना, फुल स्पीड, यानी उससे ज्यादा तो स्पीड नहीं बन सकता उसका। द मैन रन्स एट फुल स्पीड, हाउ फार डज ही हैव टू रन, कितना उसको भागना पड़ेगा, राइट, एंड आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन, आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम में ट्रेन में चला जाएगा, यानी गाड़ी पकड़ेगा, कितना डिस्टेंस भागना पड़ेगा, एंड व्हाट इज इट्स फुल स्पीड, पूरा ताकत से दौड़ रहा है। ये जो है दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ ए मैन, ओके, दिस वन वी डोंट नो। अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। आप बोलेंगे सर क्या एकदम सिंपल, फुल स्पीड से निकल गया, 9 मीटर गया, घुस गया गाड़ी में, डोर में, नहीं, ये 9 मीटर में ना ये भी स्टार्ट हो गया बेचारा। अभी ट्रेन अगर स्टार्ट होता है तो 9 मीटर जाने के लिए ये पर्सन को कुछ तो टाइम लगेगा ना, 1 2 3 4 सेकंड, राइट, तब तक वो ट्रेन आगे निकल जाएगा ना थोड़ा, यानी इसका जो भागने का है वो 9 मीटर से ज़्यादा है। अभी वो टाइम ही पता नहीं है, इसका स्पीड पता नहीं है, तो अभी प्रॉब्लम हो गया है। अभी क्या करते हैं, चलो कि बार ट्रेन गया, कुछ डिस्टेंस गया आगे, अभी ना मैं इधर वापस अपना डब्बा 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 बनाता हूँ। ये देखो ये ट्रेन इधर तक आ गया, सपोज वी हो गया ना, ये इधर था, ट्रेन का लास्ट डोर इधर था, है ना। अब जैसे ये स्टार्ट हो गए, इसने फुल स्पीड से स्टार्ट किया, तो इसको टाइम लगेगा ना थोड़ा स्पीड बढ़ने के लिए, धीरे 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 स्पीड बढ़ेगा एक्सीलरेशन में, तब तक ना ये फुल स्पीड से भागेगा ना, तो दिस पर्सन विल कैच दिस ट्रेन, ये आपका इधर में ना डोर है, ये डोर में इधर आएगा। अभी इसमें और एक लॉजिक है, आप कोई भी अगर व्हीकल पकड़ते, नॉर्मली इट हैपन्स इन ट्रेन, ट्रेन निकल रहा है, अगर स्टार्ट, ऐसे ट्राई मत करो, जस्ट बता रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ कि ट्रेन का स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड आ गया ना, तो आपका स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड रहेगा ना, देन ओनली यू कैन सी स्मूथली यू कैन एंटर इन ट्रेन, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आपका स्पीड एंड व्हीकल का स्पीड दोनों अगर सेम रहेगा ना, तो प्रॉपरली यू कैन लैंड इनसाइड द ट्रेन। दैट मीन्स व्हेन दिस पर्सन एंटर्स इन दिस ट्रेन, ये लोकेशन पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन मस्ट बी सेम, देन ओनली इट इज पॉसिबल। वो एक बार घुस गया फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर ट्रेन का स्पीड बढ़ेगा। अच्छा, अब ये ट्रेन कितना डिस्टेंस आगे जाएगा वो डोंट नो, इसको x लेते हैं, इसको लेते हैं x। अभी ये जो मैन है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 9 + x, ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये x, ट्रेन का वेलोसिटी से vt, पहले तो 0 था, कुछ एक्सीलरेशन है तो इसमें इसका स्पीड बढ़ेगा, vt हो जाएगा। मैन का स्पीड कांस्टेंट है, रनिंग विथ फुल स्पीड, यानी वो उसका स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर ये एक कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट, तो भाई एक्सीलरेशन मैन का क्या हो जाएगा, 0। ये तो सिंपल मोशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, किसका,
ट्रेन का है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैन का क्या है यूनिफॉर्म मोशन। अभी फॉर मैन इफ विल राइट इक्वेशन, देखो इधर लिखता हूँ, फॉर दिस मैन, फॉर मैन, ठीक है। अभी आपको पता है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है 9 + x है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, एंड इट टेक्स सम टाइम t, इधर तक टाइम सपोज आपका t सेकंड है भाई, राइट। स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम इज व्हाट डिस्टेंस, दैट मीन्स कैन यू से इट इज व्हाट, स्पीड क्या है vm इनटू टाइम इज व्हाट 9 + x, सिंपल रिलेशन, करेक्ट। ये देखो मीटर पर सेकंड में रहता है, इनटू सेकंड इज व्हाट मीटर, स्पीड इनटू टाइम इज व्हाट डिस्टेंस। ये आ गए, एकदम सिंपल काम हो गया। अभी ना फॉर ट्रेन, अभी ट्रेन का क्या है कि इधर एक्सीलरेशन है, इसमें ना एक्सीलरेशन है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज व्हाट 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, एंड एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ेगा। अभी सपोज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो इक्वेशन है 1 2 3, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन, u 0 है, उसमें a पता है ना 2, तो डाल देंगे, t के टर्म में आएगा, देखो t तो अननोन ही है ना, तो इसका प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। v = u + at, तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 0, ये क्या है 2 at, vt आ गया आपका डायरेक्ट 2t। ये देखो हाँ, इसको ना थोड़ा नंबरिंग करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया भाई ट्रेन के लिए, ये आ गया सपोज इक्वेशन नंबर 2। अभी ट्रेन के लिए कुछ x डिस्टेंस है ना, तो इसका भी फॉर्मूला लगेगा, क्या रहता है फॉर्मूला, यस इन टर्म्स ऑफ, देखो अभी थर्ड इक्वेशन लगेगा है ना, सेकंड में टाइम है, एक्सीलरेशन है, एंड यस, वो सबका रिक्वायरमेंट है इधर, ये पता है। दैट मीन्स इफ यू यूज s = ut + ½ at², तो इससे क्या मिल सकता है, s = ut + ½ at², तो s मीन्स आपका x हो गया अभी ट्रेन के लिए है ना, x, इसका u तो 0 है, ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया, ये हाफ है, एक्सीलरेशन पता है ना 2, एक्सीलरेशन ट्रेन का 2 t², अरे तो सिंपल हो गया, x इज व्हाट, ये t² आ गया, ये अभी इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो 1 2 3 इक्वेशन है, अभी पटापट आएगा, जस्ट किधर से क्या आएगा थोड़ा देख के ना फटाफट निकालो। अभी ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आ गया, ये आ गया x इज व्हाट t², एक वेलोसिटी ऑफ मैन एंड टाइम में आ गया इक्वेशन। आपका इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, व्हेन मैन एंटर्स इन अ ट्रेन वेलोसिटी ऑफ मैन मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू व्हाट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, करेक्ट। अभी वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो किधर से निकालेंगे, इधर से निकाल सकते हैं ना, 9 + x / t करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2t, करेक्ट आ जाएगा। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन इज व्हाट 9 + x/t, ये समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी ये 9 + x/t किया। अभी क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किधर है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ये 2t, हाँ तो t के टर्म में ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं, ये 2t आ गया। दैट मीन्स 9 + x इज व्हाट 2t², 9 + x इज व्हाट 2t², तो इधर पता है x इज व्हाट t², इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, 9 प्लस ये आपका t² इज व्हाट 2t², तो ये t² को इधर लेके आओ, 2t² - t² क्या हो जाएगा t², दैट मीन्स व्हाट 9 = व्हाट t², मीन्स t कितना आ गया देखो, हाँ 3 सेकंड। ये तो आपका एक आंसर आ गया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम मैन एंटर्स इन अ ट्रेन, आ गया भाई। अभी वो t अगर पता है तो अभी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका x भी मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 में अगर डालते हैं तो x इज व्हाट t² मीन्स व्हाट 3², तो ये क्या हो जाएगा 9 मीटर, ये भी
एक्स तो नहीं पूछा है, 9 प्लस एक्स. हाउ मच डिस्टेंस मैन विल रन, इधर से मैन विल रन, हाउ मच डिस्टेंस मैन विल रन, कितना भागेगा, हाउ मच डिस्टेंस, 9 प्लस एक्स, 9 प्लस 9 ये कितना होगा, 18 मीटर. ये आपका आंसर आ गया. करेक्ट. विथ व्हाट मैक्सिमम स्पीड दिस मैन रन्स, वो भी निकालना है ना. वीएम किधर से निकालते हैं, वीएम 9 प्लस एक्स अपॉन टी हो जाएगा इधर से. वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वेशन नंबर 1 से अगर करेंगे तो वीएम इज व्हाट, 9 प्लस एक्स अपॉन टी, 9 प्लस एक्स अपॉन टी. 9 प्लस एक्स कितना आ गया था 9, टी कितना है 3, 18/3 आ गया 6 मीटर पर सेकेंड. ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना. फर्स्ट क्लास, एकदम सिंपल. तो ऐसा दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ये 2 बॉडी प्रॉब्लम होगा. नॉर्मली सिंगल बॉडी प्रॉब्लम रहेगा ना तो थोड़ा सिंपल होता है. 2 बॉडी रहेगा तो हाँ, इसका और इसमें डिस्टेंस क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी कौन सा है, मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, जैसे इसमें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इसका एक्सीलरेशन 0 है. ये सब पॉइंट्स पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये सॉल्यूशन आराम से आता है. ठीक है. अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विच इज फ्रॉम AIEEE 2005. ओके. तो ये सिंपल है एंड दिस इज अवर लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर. बाद में आपको छुट्टी, हाँ आज का छुट्टी हो जाएगा. तो ये अभी लास्ट प्रॉब्लम एक सॉल्व करते हैं. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम प्रीवियस JEE एग्जाम मीन्स AIEEE एग्जाम का प्रॉब्लम है. ओके. अब कोई प्रॉब्लम कह रहे, दिस इज फ्रॉम AIEEE 2005 का प्रॉब्लम है. ठीक है. थोड़ा आराम से करने का है प्रॉब्लम, हाँ, बिकॉज फिगर नहीं दिया है, फिगर विल ड्रॉ, उसमें चेक करने का व्हाट इज गिवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन प्रॉब्लम. एकदम आराम से. हाँ. अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u क्या रहेगा 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u 0, एक्सीलरेट्स एट द रेट f, स्मॉल f ऐसा दिया है. नॉर्मली एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय a, इधर क्या दिया है स्मॉल f. ठीक है. एक्सीलरेट्स एट द रेट f थ्रू डिस्टेंस s, मीन्स वो डिस्टेंस कितना चलेगा s, देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम t, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड से जाएगा. ओके. एंड देन डिसिलरेट्स एट रेट f/2. देखो पहले जो एक्सीलरेशन था f, अभी लास्ट पार्ट में क्या होगा डिसिलरेशन है विच इज f/2, उसका हाफ हो जाएगा. टू कम टू रेस्ट, इफ द टोटल डिस्टेंस इज 5s देन प्रूव दैट s इक्वल टू हाफ ft². ये प्रूव करना है, s इक्वल टू हाफ ft². ये जो s है ना दैट इज हाफ ft², ये निकालना है. ये जो f है दिस इज व्हाट, उसका एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट पार्ट, लास्ट इसमें वो f/2 है. ठीक है. अभी ना एक थोड़ा चित्र निकालते हैं. हाँ ये देखो, ये सपोज एक स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट पार्ट में क्या है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट एट द रेट ऑफ f थ्रू डिस्टेंस s. अभी थ्रू डिस्टेंस s. हाँ. अभी इधर ना 3 पार्ट है, ये 1, ये सपोज सेकंड, ये थर्ड, ऐसा करते तो टिक 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 थ्रू डिस्टेंस s. ओके. कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये सपोज a है, इधर का जो u है इज व्हाट 0. ओके. अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट एट द रेट f, इसका एक्सीलरेशन ना डबल एरोइड से बताया, ये एक्सीलरेशन f, a से b तक गया, डिस्टेंस है s. अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट एट द रेट f थ्रू डिस्टेंस s. एकदम परफेक्ट होगा, है ना. देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम t. अभी मैं बोलता हूँ ये B2C में ना इसका स्पीड कांस्टेंट है, यानी अभी ये u है, इधर एक्सीलरेशन है ना तो इसका स्पीड बढ़ेगा. दैट मीन्स इधर अगर स्पीड बढ़ के vb हो गया ना तो इधर भी स्पीड है ना vc इक्वल टू vb रहेगा. क्यों? कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड, vb एंड vc सेम, समझ रहे ना. बट इसके लिए ना एक टाइम स्पैन दिया है, फॉर सम टाइम t सेकंड. इसका टाइम नहीं दिया है, इसका s दिया है, इसका t दिया है ना. ठीक है. एंड देन डिसिलरेट एट द रेट
f/2। अभी देखो ये स्पीड पहले 0 था, एक्सीलरेट हो गया, कोई स्पीड आ गया, कांस्टेंट स्पीड, अभी डिसेलरेट में स्पीड कम हो जाएगा। डिसेलरेशन नेगेटिव ऐसे है, स्पीड भाई धीरे धीरे कम होता है, राइट, मीन्स व्हाट डिसेलरेशन है, इट डिसेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट f/2 टू कम टू रेस्ट। मीन्स इधर में ना ये जो वेलोसिटी है एट डी इज व्हाट 0, और इधर जो इसका एक्सीलरेशन आएगा ना दिस इज व्हाट -f/2 है ना, डिसेलरेशन है ना, माइनस मैग्नीट्यूड दिया है प्रॉब्लम, इट डिसेलरेट्स एट f/2 मीन्स इक्वेशन में डालेंगे तो -f/2 आएगा ना, डिसेलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन टू कम टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी भी आ गया 0 हुआ है ना, इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। इफ द टोटल डिस्टेंस इज 5s, ये देखो ये इधर से स्टार्टिंग से इधर तक ये 5s दिया है, ये कितना है 5s, देन प्रूव दैट s इक्वल टू व्हाट हाफ ft²। देखो ये 5s है ना, तो मुझे क्या लगता है ये आपका इधर का जो बचा हुआ है ये 4s है। अभी ये 4s है ना, ये 1s है कि ये 3s है, 1.5s 2.5s 2s वो डोंट नो है ना, वो नहीं पता है, ठीक है। इक्वेशन लगाते हैं एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट। अभी ना एक एक पार्ट के लिए इक्वेशन लगाएंगे। देखो अगर A to B ये मोशन अगर करते हैं, फर्स्ट सिंपल u 0 है, ये जो वेलोसिटी ए के टर्म में मीन्स f के टर्म में कुछ तो मिलेगा, राइट। दैट मीन फर्स्ट मोशन इफ यू कंसिडर मोशन फ्रॉम, 3 पार्ट में करना है, A to B, B to C एंड C to D, बाद में आ जाएगा ऐसा। तो मोशन फ्रॉम A to B, अभी विच इक्वेशन विल अप्लाई, तो इधर ना कुछ टाइम का रिलेशन नहीं दिया है, मीन्स टाइम हाउ मच टाइम इट टेक्स नहीं दिया है, ठीक है। इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड कुछ आएगा a, इधर s भी है, मीन्स u v a एंड s, मीन्स अपना थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कुछ तो मिलेगा, v² इक्वल टू u² प्लस 2as इक्वेशन। अभी ये जो v है मीन्स आई विल राइट हियर व्हाट फाइनल मीन्स vb², इसको भी कर देते हैं। u तो 0 है, 2 इंटू एक्सीलरेशन क्या है f है, डिस्प्लेसमेंट क्या है s है, दैट मीन्स vb² इज 2f। और अगर आपको ये चाहिए तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2fs किधर भी रिक्वायर्ड रहेगा तो विल सब्स्टिट्यूट लाइक दिस, है ना। जो पता है ना वो सिंपली इक्वेशन में डाल के आ गया अपना एक पार्ट। अभी थोड़ा B to C में मजा करते हैं ना, B to C, देखो B to C में क्या है, मोशन फ्रॉम B to C, मोशन फ्रॉम, ये एकदम सिंपल है B to C, क्यों, एक्सीलरेशन ये 0 है, कांस्टेंट स्पीड है। अभी कांस्टेंट स्पीड है तो ये आपका VB VC सेम है ना, मोशन फ्रॉम B to C, इधर आपका एक्सीलरेशन 0, VB इक्वल टू व्हाट VC। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम B to C, इसके लिए तो स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, S इक्वल टू व्हाट वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल मेथड से आएगा, है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। पर ये ना पता नहीं है SB से, ठीक है, विल राइट। अभी S इक्वल टू व्हाट, इधर ut प्लस हाफ at², बट ये टर्म हो गया आपका 0 बिकॉज एक्सीलरेशन 0 है। अभी क्या आ गया, यस आई विल राइट एज SBC, इधर टाइम इज t सेकंड ऐसा दिया है ना, ठीक है। u मीन्स इधर u क्या रहेगा VB, ये भी सेम ही है, दैट मीन्स दिस वन इज व्हाट VB इंटू t, VB कर सकते हैं ना। अभी VB जो है ना दिस वन ऑलरेडी यू नो कि इट इज रूट ऑफ 2fs, रख देते इधर, SBC इज व्हाट रूट ऑफ 2fs इंटू t। देखो एक रिलेशन आ गया। अभी ये ना ये आपका नेक्स्ट रिलेशन आ गया, ठीक है। अभी आपका सेकंड पार्ट के लिए तो एक ही इक्वेशन आएगा, दूसरा इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, राइट। फर्स्ट इसके लिए एक इक्वेशन लिखा बिकॉज इसका इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड में कुछ पता था, यस पता था, एक्सीलरेशन पता था, ठीक है। थर्ड इसमें क्या है, वापस आपको फाइनल वेलोसिटी पता है 0, इनिशियल VB VC जो है
and इधर एक्सीलरेशन पेपर है, अगेन वी यू ए एंड यस, ऐसा इक्वेशन अप्लाई करते हैं. मोशन फ्रॉम सी टू डी, मोशन फ्रॉम सी टू डी, सब मैंने फिगर में ना लिख दिया है, इधर ऐसा लिखेंगे ना तो आराम से समझ में आता है. तो व्हाट विल डू हियर, आई विल यूजिंग v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आपका जनरल रिलेशन. आपको v मीन्स व्हाट, vd, u मीन्स व्हाट, vc, ये इनिशियल, इधर इनिशियल क्या है, vc, विच इज नथिंग बट vb, है ना. यानी आप इसको vc भी लिख सकते हैं, इसको ना vb भी लिख सकते हैं ना, vc भी सेम, क्योंकि आपका vb का एक रिलेशन आ गया है, ठीक है. प्लस 2, ये क्या है, माइनस f/2, यस कितना है, यस cd लिखता हूँ, क्योंकि ये यस है, ऐसा कुछ पता नहीं ना. दिस इज व्हाट, एनी डिस्टेंस यस, एनी डिस्टेंस यस. अभी ये जो यस बी सी आ गया है, दैट इज रूट ऑफ 2fs इंटू टी. ये जो है यस सी टू डी किया, ठीक है. व्हाट इज वेलोसिटी एट डी, 0. व्हाट इज vb, vb इज रूट ऑफ 2fs, तो vb स्क्वायर जो है इसको कर सकते हैं ना, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 2fs डाल सकते हैं इधर, है ना. अब ये हो जाएगा 2 कैंसल, ये माइनस एफ हो गया एंड ये होगा आपका यस सी डी. हाँ, अभी देखो ये -2fs इक्वल टू माइनस एफ यस सी डी. ये टर्म तो सेम है, एफ एफ कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, यस सी डी डिस्टेंस इज व्हाट, 2s आ गया, 25 नहीं 2s, 25 दिखता था, हाँ 2s आ गया. अभी तो सिंपल हो गया. देखो ये डिस्टेंस अभी आपने निकाल लिया, यस सी डी इज व्हाट, 2 टाइम्स यस, ये आपका 4s था, तो ये कितना आ गया, ये भी 2 टाइम्स यस हो जाएगा. या इक्वेशन यस ए बी प्लस यस बी सी प्लस यस सी डी इज व्हाट 5s, फिगर में डाल दिया तो फटाफट आ गए. अब ये अगर 2s है, यस बी सी है ना, यस बी सी क्या आ गया, 2s आ गया ना, यस बी सी क्या आ गया, 2s. आपका यस बी सी क्या है, 2fs इंटू टी है, तो यस बी सी व्हाट, 2s, इधर से इधर ये लिखते हैं, इंटू नहीं, इक्वल टू, है ना, इक्वल हो जाएगा व्हाट, रूट ऑफ 2fs इंटू व्हाट, ये t. ये तो कुछ रिलेशन निकलना है ना, यस एफ टी का मिल सकता है आराम से. देखो इसका ना स्क्वायर करते हैं, यानी 2s का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये रूट निकल जाएगा, 2fs, ये हो जाएगा t स्क्वायर, करेक्ट. तो ये क्या हो गया आपका, 4s स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर है, 2s का स्क्वायर मीन्स 4s स्क्वायर इक्वल टू 2fs t स्क्वायर. अभी देखो ये इधर का s गया, as गया, ये 2 तो इधर ये 2 आ गया, है ना. निकलना क्या है, यस. अभी देखो तो इधर से यस क्या मिलेगा, इधर 2 है ना, तो ये 2 इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, मीन्स हाफ हो जाएगा, हाफ एफ टी स्क्वायर आ गए ना. यस इज व्हाट, हाफ एफ टी स्क्वायर, है ना. तो in this lecture what we have done, we solved a number of problems from previous JEE exam, means AIEEE exam, which are based on equations of motion, So this one is our first lecture we have finished. With next lecture what we'll do, we'll solve problem based on motion under gravity. बहुत important है, because एग्जाम में ना मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है. अभी इसमें कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ये 5, 6, 7 प्रॉब्लम्स व्हाट यू सॉल्व, राइट. मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, उसमें वैरायटी भी है, एंड एग्जाम में भी नॉर्मली मोशन अंडर ग्रेविटी का आता है, इधर का कभी कभी आता है. इसलिए एग्जाम का प्रॉब्लम एक्चुअली कम था, 3-4 ही प्रॉब्लम था, है ना, बट उसमें ना बहुत ज़्यादा है. ओके, तो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, काइनेमेटिक्स 1D
lecture number 6, and what will study? Motion under gravity. Thank you. Best of luck.